أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ یہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے۔ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے اور 286 آیات پر مشتمل ہے۔ مدنی سورت ہے اور اگرچہ اس کے کچھ آیات مکہ المکرمہ میں ہجرت کے بعد مکہ المکرمہ میں حج کے موقع پر نازل ہوئی ہے، لیکن یہ پوری کی پوری سورت مدنی کہلاتی ہے اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان بھی بھاگ جاتا ہے اور جادو کا اثر بھی نہیں رہتا ہے، اور اگر انسان پوری سورت کی تلاوت نہیں کر پاتا ہے، کبھی کبھار مجبوری کی وجہ سے کوئی مجبوری ہو نہیں پڑھ پاتا ہے، تو کم از کم 10 آیات کی تلاوت کرنی چاہیے۔ شروع کی 4 آیات اور بیچ میں جو 3 آیات ہیں، درمیان میں سورہ یہ آیت الکرسی اور اس کے ساتھ جو 2 آیتیں اور ہیں ان کو ملانا ہو گئی 4 اور 3 ہو گئی 7 آیات، اور آخر میں جو 3 آیات ہیں سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کو ملا کر ہو گئی 10 آیات۔ ان 10 آیاتوں کی کم از کم تلاوت ہونی چاہیے اپنے گھروں میں، اور ہمارے گھر بھی جادو سے، سحر سے، شیطان کے وسوسوں سے ہمارے گھر بھی محفوظ رہیں گے۔ یہ سورہ بقرہ اس کے اندر گائے کا واقعہ بھی موجود ہے، اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہا جاتا ہے، تو اسی لیے اس کا نام ہے سورہ بقرہ۔ تو یہ سورہ بقرہ اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں پہلے یہ کہ 3 گروہ کیے گئے ہیں۔ ایک وہ ہے، ایک ایمان ہے، ایک وہ ہے جنہوں نے ایمان لایا اللہ پر مکمل طور یقین کے ساتھ، جنہوں نے مکمل اللہ تعالیٰ کی پیروی کی ہے، اطاعت کی ہے، جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا ہے۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے مکمل بائیکاٹ کیا ہے، جنہوں نے مکمل انکار کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان نہیں لایا ہے، ایمان بالغیب بھی نہیں لایا ہے، انہوں نے بالکل انکار کیا ہے۔ تو پہلے والے ہیں جنہوں نے ایمان لایا ہے ان کو ایمان والے کہتے ہیں، ان کو مومنین بھی کہیں گے اور متقین بھی کہیں گے۔ دوسرے وہ گروہ ہے، دوسرا جو ہے اس کے بیچ میں جو دوسرا گروہ آیا ہے جنہوں نے مکمل انکار کیا ہے وہ ہے کافر۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو یقین جو ہے ایمان جو انہوں نے اسلام لایا تھا، یعنی کہ زبان سے وہ بولتے تھے کہ ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں، لیکن دل سے ماننے والے تو نہیں ہیں، انہوں نے بالکل دل سے انکار کیا تھا، دل میں حسد تھا، بغض تھا، انکار تھا، نافرمانی تھی، بغاوت تھی، خالص زبان سے وہ اقرار کرتے تھے، تو وہ ہے منافقین۔ یہ 3 گروہ ہیں اس میں جن کا ذکر اس قرآن کریم میں اس سورہ بقرہ کے اندر کیا گیا ہے۔ تو جو قرآن مقدس جو سورہ بقرہ کی پہلے رکوع کی میں نے تلاوت کی ہے، سب سے پہلے اس میں الف لام میم یہ ہیں، ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ بہت سارے مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے، کوشش کی ہے بہت سارے مفسرین نے کہ اس کے معنی اور اس کے ترجمے کو نکالنے کے لیے، ترجمہ ڈھونڈنے کے لیے اس کا معنی بہت کوشش کی تھی ڈھونڈنے کی، لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ جیسے الف لام میم ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کہتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے حروف کو، یعنی کہ یہ کوئی ملا کر کوئی حروف الگ سا کوئی حروف نہیں بنتا، ان کا کوئی معنی نہیں ہے۔ معنی ہوگا ہمارے پاس تو یعنی کہ کسی مفسر نے اپنی تفسیر میں ان کا معنی بیان نہیں کیا ہے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ جیسے قرآن شریف کے اندر، قرآن مقدس کے اندر جو سورہ شریفہ ہے، جیسے کسی سورت کی ابتدا میں الف لام میم آتا ہے، کسی میں الف لام را آتا ہے، کسی میں حا میم صاد آتا ہے، کسی میں قاف آتا ہے، کسی میں الف لام را آتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ ان کا معنی آج تک کہیں سے ثابت نہیں ہوا ہے، نہ کسی کو معلوم ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں اور متقین لوگوں کے لیے ہے۔
सबसे पहले यहाँ ये देखा जाएगा, ये ज़ालिकल किताब, ज़ालिका अगर हम देखते हैं अरबी में, ज़ालिका बईद के लिए, कोई चीज दूरी पर है तो उसको दूर चीज के इशारे का, अगर उस दूर जो चीज रखी हुई है उसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं तो ज़ालिका कहा जाता है। अगर नजदीक है, कोई सामने है कोई चीज, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है हाजा, ये किताब। यहाँ इस्तेमाल होना चाहिए था हाजल किताब, लेकिन यहाँ ज़ालिकल किताब हुआ है, जबकि कुरान हमारे सामने है। ये क्यों कह रहे हैं कि ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है। असल में मुफस्सिरीन इसके बारे में अपने हिसाब, अपने तरीके से सारे मुफस्सिरीन ने लिखा है, लेकिन इसमें जो एक अहम बात यह है कि मुफस्सिरीन ने जो लिखा है वो ये है कि जब अगरचे कोई चीज सामने ही होती है लेकिन वो अजीम और शान चीज होती है, तो उसके लिए भी जो दूरी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जैसे ज़ालिका, तो वही नजदीक वाली चीज के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ज़ालिका हमने यहाँ तो ये किया गया है इस्तेमाल ज़ालिका, तो ये एक माना लिया जा सकता है। दूसरा ये कि ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है। कौन सी किताब? अगर हम पीछे जाएंगे, जो हमने पढ़ा था सूरह फातिहा में के अंदर, इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, राह दिखलाने वाली किताब, ये वो किताब है। कौन सी किताब? जो आपने दुआ मांगी थी, दरखास्त की थी अल्लाह ताला से, सिरातुल मुस्तकीम, भाई अगर आप चाहते हैं सिरातुल मुस्तकीम पर चलना, ये वो किताब है जो आपको राह दिखलाएगी, सिरातुल मुस्तकीम पर चलाएगी, यही है वो किताब। ज़ालिकल किताब ला रैब फी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, कोई गलती, कोई तहरीफ, किसी चीज का हम इसमें इनकार तो नहीं कर सकते, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, किन के लिए? मुत्तकीन के लिए, परहेजगारों के लिए, और तकवेदारों के लिए। तकवा किसको कहते हैं? तकवा का मफहूम आता है कि बचना। तकवा का मफहूम है बचना, यानी कि अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचना, अल्लाह ताला की इताअत करना, अल्लाह ताला की हर उस चीज से जो जिससे अल्लाह नाराज हो उससे अपने आप को बचाना। वो जब इंसान के अंदर ये चीज मौजूद हो तो वो खुद ब खुद तकवादार बन जाता है, उसके अंदर तकवा आ जाता है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो यकीन रखते हैं, जो ईमान लाते हैं, किस पर? बिल गैब, गैब पर ईमान लाते हैं। जैसे गैब पर ईमान लाना वो है कि किसी की बात को, कोई आपको बात कह रहा है तो उस पर एतमाद करके यकीनी तौर पर उस बात को मान लेना। अब जबकि आपने आंखों से देखा नहीं है, तो इसमें क्या आता है? हम सब ने सुना है तज़किरा जन्नत का, जहन्नम का, आखिरत का, ये सब तो हमने देखा नहीं है लेकिन हमने सुना है। और इन बातों पर ईमान रखना, यानी कि बिना देखे किसी चीज पर ईमान रखना, यकीन रखना और इस पर चलना, उसको इकरार करना, उसको मान लेना, उसी को कहते हैं गैब पर ईमान लाना, जो कि हमने देखा नहीं है। तो इसी तरह कुरान करीम ने बयान किया है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो ईमान गैब पर ईमान रखते हैं, व युकीमून अस्सलात, और नमाज को कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह ताला फरमाते हैं जो कुछ हमने दिया है, जो कुछ माल, जो कुछ रिज़्क़ हमने दिया है, उसमें से वो खर्च करते हैं, उसमें से वो खर्च करते हैं। जैसे कि इसमें आता है, अगर सदका, खैरात वगैरह वगैरह जो कुछ हम देते हैं, तो अगर हम इसमें खर्च करते हैं, जो माल अल्लाह ताला देते हैं, तो वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक, और जो लोग ईमान लाते हैं, बिमा उन्ज़िला इलैक, जो कुछ हमने आप पर नाजिल किया है, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान को नाजिल किया गया है, जो ये आयत शरीफ आप पर हम नाजिल कर रहे हैं, ये सूरत आप पर हम नाजिल कर रहे हैं, आप पर जो अहकाम हम जारी कर रहे हैं, जो लोग ईमान रखते हैं, जो कुछ आप पर उतरा है, आप पर नाजिल किया गया है, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और वो चीजें जो आपसे पहले की, वो चीजें जो कुछ हमने आपसे पहले नाजिल किया है, यानी कि तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, तो इन सब पर इसमें याद रखना चाहिए, वो तौरात, उस पर हमारा ईमान है कि वो अपने ज़माने में हक पर हक थी, वो अल्लाह की किताब है, नाजिल शुदा किताब है। तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई है, अगरचे बाद में उस पर तहरीफ हुई है, लेकिन वो अपने ज़माने में उस वक्त हक थी। इंजील है, ज़बूर है, इन पर हमारा ईमान हो। यही कहा गया है, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक, जो कुछ हमने आप पर नाजिल किया है, जो ईमान रखते हैं उस पर, या आपसे पहले जो नाजिल किया गया है,
जो उस पर ईमान रखते हैं, वबिल आखिरति हुम युकिनून, और जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। आखिरत पर यकीन रखना और जो ईमान दुनिया के बाद यानी कि मरना है, आखिरत बाज़ाब्ता है, हमें जिंदा होना है, अल्लाह के हुजूर जवाब देकर होना है, अल्लाह के हुजूर हमें खड़ा होना है, इस पर हमारा यकीन होना चाहिए। इस पर जो यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग हिदायत पर अपने परवरदिगार की तरफ से है। यही लोग वो है जो अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर है। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग कामयाब शुदा लोग हैं, यही लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, यही लोग कामयाब शुदा लोग हैं। इन्होंने ही मुकद्दर पाली है जो इन सब बातों पे ईमान रखते हैं। ये है ईमान की बात, मुसलमानों की बात, मोमिनों की बात, मुत्तकीनों की बात। ये सब बातें जब हमारे सामने आते हैं तो इन सब चीज़ों पर हमारा यकीन रखना लाजमी और ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ये बात ये आती है कि ईमान और इस्लाम में क्या फ़र्क है। ईमान हो है इंसान के अंदर, जब तक ईमान नहीं है तब तक इस्लाम मुअत्तबर नहीं है, जब तक इस्लाम नहीं है तब तक ईमान मुअत्तबर नहीं है। ईमान का मतलब है दिल से तस्दीक करना, दिल से इस चीज की तस्दीक करना। इस्लाम का माना है ज़ाहिरन, जुबान से इकरार करना, और जुबान के साथ साथ दिल का इकरार तस्दीक दिल की तस्दीक जरूरी है। दिल की तस्दीक के साथ साथ जुबान का इकरार जरूरी है, जुबान के साथ भी इकरार जरूरी है। इसलिए ये तो ईमान वालों की बात यहाँ हुई है। अब हम आगे चलते हैं उन लोगों के, जो मैंने 3 गिरोह आपके सामने बयान किए हैं। इसमें पहले ईमान वाले हैं, उसके बाद काफिर हैं, उसके बाद मुनाफिकीन हैं। अब दूसरा गिरोह इसमें आता है, जैसे इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक जो लोग काफिर हो चुके हैं, जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया है, जिन्होंने ये जो खड़े हो गए हैं, भाई हमें अब दीन को मानना बिल्कुल नहीं है। इसमें आम काफिर वो सब नहीं आते थे, क्योंकि बाद में बहुत सारे काफिर जो है इस्लाम के अंदर भी दाखिल हुए हैं, उन्होंने ईमान लाया है। तो यहाँ वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला को मालूम था भाई अब ये मानने वाले नहीं है, इनका कुफ्र, इनका दिल कुफ्र से भरा हुआ है, ये अब वापस आने वाले नहीं है। ऐलान किया गया इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जो काफिर हो चुके हैं, सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम, और क्या कहते हैं, बेशक वो लोग काफिर है, वो लोग जो काफिर हो चुके हैं, बराबर है वो, यानी कि उनके यहाँ बराबरी है, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अअंज़रतहुम, इंजार का माना है यहाँ जो है, अअंज़रतहुम इंजार का माना जो यहाँ आता है वो है डराना, यानी कि आप उनको डराए। अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून, आप उनको डराए या ना डराए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ईमान तब भी नहीं लाएंगे। अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून, अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िर, आप उनको डराए या ना डराए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर, उनके दिलों के अंदर जो कुफ्र है वो अब मिटने वाला, वो अब खत्म होने वाला नहीं है। उन्होंने इरादा किया है हमें शरीयत माननी नहीं है, हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों पर यकीन नहीं करना है, हमें अल्लाह के अहकामों को बजा नहीं लाना है, हमें अगर रहना है इसी कुफ्र पर रहना है। तो अल्लाह ताला ने ऐलान किया खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, हमने मोहर लगा दी, अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर। अब वो हिदायत नहीं पाएंगे। जिस पर अल्लाह मोहर लगाए, जिस दिल पर अल्लाह मोहर लगाए, उस दिल पर, यानी कि सिया दाग जिस दिल पर लग जाता है, उसमें हकीकत, उसमें फिर हक की बात नहीं उतरती है। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, और मोहर लगा दी अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर, व अला समइहिम, और उनके कानों पर। अब वो ना दिल के अंदर हक को ले सकते हैं, मान सकते हैं दिल से, ना वो अपने कानों से हक सुन सकते हैं। व अला अबसारिहिम गिशावा, हमने उनकी आंखों पर पर्दा किया है, वो अब हक को भी नहीं देख सकते हैं, वो अब बिल्कुल हक नहीं देख सकते हैं। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए बहुत ही बड़ा अजाब है। यानी कि जो लोग उन्होंने ये खड़े हो गए हैं,
ये इन्होंने ये इरादा किया है भाई हम जिस दीन पर हैं, जिस चीज पर हैं, हमें उससे आगे नहीं जाना है, हमें शरीयत को नहीं मानना है। इस वक्त जो शरीयत है, कुरान मुक़द्दस है, नबी अलैहि सल्लम के मुबारक तरीके हैं, अल्लाह ताला के अहकामात है, हमें उन चीजों को नहीं मानना है। अल्लाह को मालूम था ये वो कौम है, ये वो लोग हैं, ये वो गिरोह है जो अब ईमान लाने वाले नहीं है। अल्लाह ताला ने ऐलान किया, ए नबी अलैहिस्सलाम आप उनको समझाए ना समझाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको, ये तब भी ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि हमने इनके दिलों पर मोहर भी लगा दी, उनके आंखों पर जो है कान भी बंद कर दिया हमने, उनके आंखों पर हमने पर्दा डाला है। वो अब हक उनको बातिल के सिवा, उनको बुराई के सिवा, गलत चीजों के सिवा उनको हक नजर कभी नहीं आएगा। आप उनके लिए मैंने एक दर्दनाक अजाब रखा है। तो इसीलिए कहते हैं कि बार बार हम मुसलमानों को चाहिए, हमें एक दुआ करनी चाहिए, हमेशा अपनी दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में करनी चाहिए। हमारे मुसलमान के दिल पे कभी दाग नहीं लगना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, ए अल्लाह, ए दिलों को फेरने वाले, ए दिलों को फेरने वाले, हमें साबित, हमारे दिलों को साबित दीन पर साबित कदम, दीन पर साबित रखिएगा, दीन पर कायम और दायम रखिएगा। बस ये दुआ करनी चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह ताला से दुआ हो है, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सब को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।